وہ دونوں آج حنان کے ساتھ ڈنر پر آئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی رکی تو فجر مسکراتے ہوئے نیچے اتری۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ انس کو گود میں لینا چاہتی تھی جب حنان نے اسے منع کیا۔ رکو، میں خود انس کو لے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انس کو لینے لگا۔ فجر پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حنان انس کو گود میں لے کر جیسے ہی فجر کی طرف مڑا تو اسے ایک گاڑی تیزی سے سامنے سے آتی دکھائی دی جس کا رخ فجر کی طرف تھا۔ حنان نے تیزی سے فجر کو اپنی طرف کھینچا جبکہ گاڑی زن سے ان کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ فجر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جبکہ حنان اسے خود سے لگائے ابھی تک کھڑا تھا۔ اس کا دل ابھی تک لرز رہا تھا۔ اگر فجر کو گاڑی لگ جاتی تو یہ خیال ہی اسے پریشان کر رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا فجر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حنان، کس کی کار تھی یہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں ڈیئر، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے خود سے لگاتے اندر لے کر چلا گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کس کی گاڑی ہو سکتی ہے وہ، اور کون ہو سکتا ہے اس گاڑی میں، یا کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس سب حرکت کے پیچھے۔ زرلش دوبارہ سے آ گئی تھی اور اب وہ بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، یہ بات جان چکا تھا وہ۔ ریسٹورنٹ میں بھی وہ کھویا کھویا سا تھا۔ فجر کافی بار اسے نوٹ کر چکی تھی۔ جب زرلش کی چہکتی آواز پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ہیلو گائز، وہ مسکرا رہی تھی۔ حنان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی جسے فجر بھی دیکھ چکی تھی۔ اوہ یہ کیوٹ سا بیبی، ہیلو بیبی، وہ انس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ تابش کا بیٹا ہے نا حنان؟ وہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حنان نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔ فجر نے بتایا تھا مجھے۔ کیوں فجر؟ وہ فجر کی طرف مڑی۔ فجر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حنان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر تم؟ وہ دھیمے دبے لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں مس کر رہی تھی بہت جانم، زرلش ایک ادا سے کہہ کر اس کے قریب ہوئی۔ حنان بدک کر پیچھے ہٹا۔ فجر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حنان کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حنان چلتے ہیں، ریلیکس رہو۔ ریلیکس رہو۔ حنان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں حنان، پلیز چلتے ہیں۔ حنان خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر انس کو گود میں بھر کر وہ فجر کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں انس کو بٹھا کر وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فجر بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور حنان کے چہرے کے آثار اتار چڑھاؤ وہ دیکھ رہی تھی۔ حنان، اس نے آہستگی سے اسے آواز دی۔ حنان گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز ریلیکس رہو۔ حنان نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ تم ڈپریس مت ہو، I'm fine، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے بولا، لیکن اندر کہیں ایک ڈر سا بیٹھ چکا تھا کہ فجر کی جان اب سے خطرے میں ہے اور اسے فجر کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب زرلش کسی ناگن سے کم نہیں، وہ کبھی بھی کہیں بھی ڈس سکتی تھی اسے۔ انس کو سلا کر جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اسے اچانک پیٹ میں درد کا احساس ہوا۔ وہ کراہ کر رہ گئی، ایسا درد اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اپنے موبائل فون کو دیکھنے کے لیے کہ حنان کو کال کر سکے، لیکن اسے کہیں بھی موبائل نظر نہیں آیا۔ اف کیا کروں؟ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ درد کو برداشت کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اسے دروازے پر بجتی بیل کی آواز آئی۔ حنان کافی دیر سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے مصروف انداز میں کال ریسیو کی، لیکن دوسری طرف آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں کال کی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ فجر کا پوچھنا ہے تم سے، کیسی ہے وہ؟ زرلش پوچھنے لگی۔ حنان کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رکے تھے۔ تم سے مطلب؟ نہیں مطلب، اب دیکھو نا، اتنی نازک سی پیاری سی بیوی ہے تمہاری، سیکنڈ ہینڈ ہی صحیح۔ زرلش کی بات پر اسے آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا، لیکن زرلش کی زہر خند ہنسی اسے سنائی دی۔ پتا کرو ٹھیک بھی ہے کہ نہیں تمہاری فجر۔ حنان نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ فجر کا نمبر ملانے لگا۔
रिंग पर रिंग जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल ही नहीं रिसीव की गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे अपना जिस्म किसी खाई में गिरता महसूस हुआ। फजर, पिक अप द फोन प्लीज, किधर हो? पता करो ठीक है भी कि नहीं तुम्हारी फजर। जरलिश की जहरीली आवाज उसके कान में दोबारा गूंजी। खत्म कर दूंगी तुम्हारी फजर को मैं, हमेशा के लिए। उसकी खातिर तुमने मुझे धुतकारा था ना? जरलिश की कही बात उसे फिर याद आई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और भागता हुआ बाहर को लपका। उसने दोबारा फजर का नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फजर को खो देने का डर जैसे हकीकत बनता जा रहा था, लेकिन वो अपने जहन में ऐसा कोई भी ख्याल आने से पहले अपनी ही सोचों की नफी करता रहा। हन्नान केयर से दरवाज़ा खोलता जैसे ही अंदर आया तो उसे अंस के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। वो भागता हुआ कमरे की तरफ गया। अंस नींद से जाग कर अब कमरे में खड़ा, बीचों बीच कमरे में खड़ा रो रहा था। हन्नान ने तड़प कर आगे बढ़कर उसे बाजुओं में भर लिया। बस मेरा बच्चा, मम्मा। वो रो रो कर अपनी माँ को हिला रहा था। हन्नान ने उसे प्यार करते हुए तसल्ली दी और उसे गोद में उठाकर जैसे ही खड़ा हुआ, उसको लेकर उसने उसके बेड पर बिठाया। कुछ खिलौने उसके पास रखे। जैसे ही मुड़ा, उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे से नजर आते फजर के पाँव पर पड़ी। उसका दिल जैसे रुकने लगा। वो जल्दी से आगे बढ़ा। सामने ही वॉशरूम में फजर खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। हन्नान की आंखें जलने लगी। नम आंखों के साथ वो आगे बढ़ा और खून में लथपथ फजर का सर अपनी गोद में रखा। फजर, फजर, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। उसके वजूद में कोई हरकत नहीं थी। फजर, क्या हो गया तुम्हें? फजर, मेरी जान, क्या हो गया? वो रो देने को था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस हालत में क्या करे वो अब। फजर की कलाई थाम कर उसने नब्ज चेक की तो उसकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। वो फजर के माथे को चूमता। उसके मोबाइल पर कोई नंबर वो अपने मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर में अब वो टहल रहा था। मिनट मिनट उस पर भारी गुजर रहा था जब आईसीयू से डॉक्टर आती नजर आई। क्या हुआ है मेरी मिसेस को? उसकी आंखों में नमी थी। डॉक्टर के चेहरे पर फैली अफसुर्दगी देखकर उसका दिल डूब कर उभरा था। मेरे पास गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए। आपकी मिसेस का मिसकैरेज हुआ है एंड बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है। वी आर ट्राइंग कि उन्हें होश में लाया जा सके। हन्नान दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया, जबकि डॉक्टर्स ने अफसुर्दगी से उसकी हालत को देखा। दुआ कीजिए आप बस, ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई और हन्नान वहीं दीवार के साथ लगा नीचे बैठता चला गया। घुटनों के गिर्द बाजू हाइल करके उसने ठोरी अपने घुटनों पर टिका दी। उसकी आंखों में वहशत वाज़ेह थी। खौफ उसके पूरे वजूद पे फैल रहा था। फजर को खो देगा वो। उसकी सिसकी उभरी। नहीं फजर। उसे अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। वो रोने लगा था। सिसकियां लेकर वो रो रहा था। दुआ मांग रहा था, फजर की जिंदगी की दुआ। कितना मुश्किल होता है ना कि जब कोई आपका अपना आपसे दूर जा रहा हो और बस आप हाथ मलते रह जाएं, कुछ ना कर पा रहे हो। यूं ही उसे बैठे बैठे कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बस अपनी धुंधलाई वहशत ज़दा आंखों से सामने दीवार को घूर रहा था। मिस्टर हन्नान। हन्नान ने धुंधलाई नज़रों से आवाज़ की सिमत ऊपर को देखा तो सामने ही नर्स खड़ी थी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ रहम कीजिए आप सब मुझ पर। नर्स उसके सामने वहीं बैठ गई। वो कब से उस शख्स को देख रही थी जो अपनी बीवी के लिए रो रहा था। आपकी मिसेस बिल्कुल ठीक है और उन्हें होश भी आ चुका है। वो आपको बुला रही हैं। नर्स मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी और हन्नान हैरत से उसे देख रहा था। मेरा मजाक बना रही हैं आप? उसने टूटे लहजे में कहा। नहीं, नर्स ने नफ़ी में सर हिलाया। चलिए उठिए, मेरे साथ आइए, मैं आपको उनके रूम तक ले जाती हूँ। नर्स उसे उठने में मदद देने लगी। हन्नान अपने लड़खड़ाते वजूद को संभालता उसके साथ उठ गया और नर्स के साथ आगे बढ़ने लगा। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो मजबूत बना आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, अपनी फजर को, अपनी मोहब्बत को, अपनी जिंदगी को। कमरे में आकर उसने डरते डरते उस बेड की तरफ देखा जहां फजर लेटी थी। उसे लग रहा था कि नज़र पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे नर्स की बात पर भी यकीन नहीं था। उसे लगा वो झूठ बोल रही है सिर्फ उसका दिल रखने के लिए। हन्नान। फजर की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो उसने हन्नान को आवाज़ दी। हन्नान धड़कते दिल के साथ
आवाज़ की सिमत देखने लगा और लड़खड़ाते कदमों के साथ उस तक पहुंचा। वो देर तक फजर को देखता रहा, उसके जर्द पड़ते चेहरे को अपने हाथों में भरकर देखता रहा। तो तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा हन्नान। वो रोने लगी। हमारा बच्चा नहीं रहा। हन्नान ने उसे चुप कराया और उसकी नम आंखों को अपने हाथों से साफ किया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है फजर, मुझे बस तुम चाहिए हो। तुम्हारी मुस्कुराहटें ही मुझे मुकम्मल करती हैं। मैं मुकम्मल तुमसे हूँ फजर। फजर की नम आंखों में देखते वो फरते जज्बात से बोलता चला गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता फजर, मैं वहीं मर जाता, शायद जिंदा लाश बन जाता। मुझे तुमसे मोहब्बत है फजर, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो फजर। मैंने तब से तुम्हारी ख्वाहिश की है जब तुम्हें खबर तक नहीं थी। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम और तुम्हारी खुशियाँ ही मुझे अजीज़ हैं फजर। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। फजर बस उसे देखे गई। ये कैसा शख्स था जिसे खुद से ज़्यादा बस उसकी परवाह थी। कैसी मोहब्बत थी उसकी कि बदले में वो कुछ मांगता भी नहीं था उससे। ऐसा भी कोई शख्स हो ऐसा भी कोई शख्स होता है इस दुनिया में क्या? फजर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो एकदम से फिर पूछने लगी, अंस कहाँ है? बुआ के पास है, डोंट वरी, बस अपना ख्याल रखो तुम और जल्दी से ठीक हो जाओ। वो उसे नज़रों के हिसार में लिए कह रहा था। फजर भी तमानियत से मुस्कुरा दी थी। वो अब घर आ चुकी थी। हन्नान ने उसे बेड पर बैठने में मदद दी। बुआ अंस को लेकर अंदर आई और अंस अपनी माँ को देखकर चहकने लगा। फजर ने तड़प कर उसे बाहों में भर लिया और उसका चेहरा चूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। फजर बिटिया कैसी तबीयत है अब? बुआ उसे मोहब्बत से देखती पूछ रही थी। ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? फजर अपने आंसू साफ करती उन्हें देखने लगी। अल्लाह का करम है बिटिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम हॉस्पिटल से घर आ गई। अल्लाह लंबी जिंदगी दे मेरे बच्चों को। बुआ के दुआ देने पर फजर मुस्कुराने लगी। अल्लाह आपका साया भी हम सब पर सलामत रखे। हन्नान अंस को गोद में लेकर पूछने लगा, पापा की याद नहीं आई आपको? बस मम्मा ही याद आ रही थी। अंस ने हन्नान का चेहरा अपने नन्हे हाथों में भरते हुए कहा, आपको भी मिस किया मैंने पापा। और हन्नान के गाल पर उसने प्यार किया। हन्नान ने भी मुस्कुरा कर उसे प्यार किया। आप तो पापा की जान है मेरे चैंपियन। फिर फजर की तरफ मुतवज्जो हुआ। रेस्ट करो अब तुम, कब से यूं ही बैठी हो? वो अंस को बुआ के हवाले करके अब फजर को लेटने में मदद देने लगा। बुआ अंस को लेकर कमरे से चली गई। हन्नान भी उस पर कंफर्टर डालकर जाने लगा था जब फजर ने उसका हाथ थाम दिया। हन्नान ने उसे सवालिया नजरों से देखा। कुछ चाहिए? मेरे पास रहो, उसने धीमे लहजे में कहा। तो हन्नान मुस्कुराकर उसके पास ही बेड पर बैठ गया। बेड क्राउन से टेक लगाए वो फजर के बालों में नरमी से अपनी उंगलियां चलाने लगा। फजर ने भी आंखें मूंद ली। हन्नान का वजूद उसे तमानियत बख्श रहा था और कुछ ही देर में वो सो भी गई। हन्नान मोहब्बत से उसके चेहरे को देखने लगा। बहुत कमजोर हो गई थी वो। उसे दुख ने आन घेरा। उसके माथे पर बोसा देकर वो भी कमरे से निकल गया ताकि फजर आराम से सो पाए। बार बार जर्लिश का नंबर स्क्रीन पर उभर रहा था। वो बार बार कॉल काट देता, लेकिन जिद होकर उसने कॉल रिसीव की थी। क्या मसला है तुम्हें? क्यों कॉल कर रही हो बार बार मुझे? वो तेज लहजे में पूछने लगा। फोन क्यों काट रहे थे मेरा? जर्लिश गुस्से से पूछ रही थी। यू बेटर नो के क्यों? हन्नान ने काटदार लहजे में कहा। जर्लिश की हंसी उभरी। आए भी नहीं यहाँ, मैं कल से वेट कर रही थी तुम्हारा। अपनी हद में रहो जर्लिश और दूर रहो मेरी लाइफ से। हन्नान का लहजा सख्त हुआ था। तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी वाइफ से दूर, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी वाइफ से दूर नहीं रह सकती मैं। जर्लिश ने मस्नुई लाचारगी से कहा। मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। हन्नान के सख्त लहजे का उस पर असर भी नहीं हो रहा था। वो एकदम से हंस पड़ी थी। लेना देना तो है इससे, चलो एक डील करते हैं, वो दोस्ताना लहजे में कहने लगी। गो टू हेल विद योर डील, वो गुर्राया था। फोन बंद मत करना हन्नान प्लीज, जर्लिश अचानक से बोली। लेकिन हन्नान फोन बंद कर चुका था जब दोबारा से जर्लिश की कॉल आ गई। उसने रिसीव की। अगर फोन बंद किया ना तो मैं फजर को कॉल कर दूंगी, जर्लिश एकदम से बोली। उसे बीच में मत लाओ,
وہ خود بیچ میں آ گئی ہے۔ خیر ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ حنان خاموش رہا۔ ڈیل یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں گی فجر کا پیچھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بس تم میرے پاس آ جاؤ کچھ لمحوں کے لیے، مجھے چند خوبصورت لمحے بخش دو بس۔ زرلش کی بات پر حنان بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ، چند لمحوں کی ہی تو بات ہے حنان، ایک ہی بار میرے اتنے قریب آ جاؤ کہ ہم میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دیر تک وہ کن پٹی سہلاتا رہا، اس کے اندر غصہ بھر چکا تھا زرلش کی اس گندی بات پر۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی بار زرلش کال پر کال کرتی رہی لیکن حنان نے ریسیو نہیں کی۔ جب بار بار کال کرنے پر بھی حنان نے ریسیو نہیں کیا تو زرلش نے غصے سے بیڈ پر فون پٹک دیا اور خود اپنے بال نوچنے لگی۔ حنان تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تمہیں آنا پڑے گا، نہیں آئے تو پچھتاؤ گے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ زرلش جو کہ حنان کے انتظار میں ٹہل رہی تھی اچانک حنان کی آواز پر رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی، سرتا پا اس نے خود کو سجایا ہوا تھا حنان کے لیے۔ تم آ گئے حنان، وہ اس کے قریب آ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے ہولے سے بولی۔ حنان نے ناگواری سے اپنا بازو چھڑوایا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب تم؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ بتاتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ سیڑھیوں کے قریب لے گئی۔ حنان کو ساتھ لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے دروازہ بند کیا۔ حنان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے قریب آنے لگی۔ کب سے انتظار کیا ہے میں نے ان لمحوں کا، وہ بہکے لہجے میں کہتی اپنے بازو حنان کی گردن میں حائل کرنے لگی جب حنان نے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ زرلش سنبھل کر پہلے اسے دیکھنے لگی پھر اس پر جھپٹی تھی۔ میرے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا میں چاہتی ہوں حنان، ورنہ میں تمہاری بیوی کو مار ڈالوں گی۔ ابھی ایک کال کروں گی اور فجر کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے وہ۔ میری بیوی سے دور رہو زرلش، کتنی مرتبہ بتاؤں تمہیں میں یہ بات، وہ چلایا تھا زور سے۔ تو تم میرے قریب رہو حنان۔ اس نے تیزی سے زرلش کو خود سے دور کر کے نیچے گرایا تھا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر جانے لگا۔ زرلش اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے حنان۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی، جیسے اس کی پسند کی خوراک اسے نہ ملی ہو اور وہ بہت غرا رہی ہو۔ حنان چلتا جا رہا تھا، اسے جلد سے جلد فجر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ اس سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ختم کر دوں گی فجر کو، وہ چیخی تھی لیکن حنان انسنی کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زرلش اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن حنان گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ زرلش وہیں چیختی چلاتی بیٹھ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ حنان، تم ایسے نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر، تمہیں آنا ہوگا، تم دوبارہ سے آؤ گے یہیں میرے پاس۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی اور کوئی نمبر ملانے لگی۔ قتل کر دو فجر کو، مار ڈالو اس بچ کو ابھی کے ابھی، وہ فون کان سے لگا کر چیخی تھی۔ فجر نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے حنان کھڑا تھا۔ اس نے اسے خود سے لگا لیا اور بنا کچھ کہے یوں ہی کھڑا رہا۔ فجر اس کی اس حرکت پر بوکھلائی۔ حنان آر یو اوکے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اس لمحے بہکا نہیں تھا، اس کے دل میں زرلش کے لیے کوئی احساس نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لمحے کو سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا، خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ بے چینی سی پھیل گئی تھی اس کے وجود میں کہ وہ بے وفائی کا مرتکب ہوا ہے شاید، یا گنہگار ہے وہ فجر کا۔ تبھی سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فجر مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو پلیز فجر۔ فجر 2 قدم پیچھے ہٹ کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تمہارا گنہگار ہوں، وہ روحان سی ہوا تھا۔ فجر اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنان مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ حنان نے اپنا جھکا سر اٹھایا، وہ مسکرا رہی تھی، اس کا شفاف چہرہ چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں یقین تھا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کچھ مت بولو۔ فجر نے دھیرے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ نہیں فجر پلیز بولنے دو۔ وہ بے چین ہوا۔ لیکن میں کچھ پوچھ تو نہیں رہی نا تم سے؟ اس کے چہرے پر اب بھی نرم مسکراہٹ تھی۔ زرلش
उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। जरलिश खुद मेरे करीब आई थी। मैंने उसे खुद से अलग करना चाहा, वो फिर से मेरे करीब आ गई तो मैंने उसे धक्का। फजर ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर उंगली रख दी। तुम मेरे शोहर हो हन्नान, हमराज हो मेरे, मुझे तुम पर अपनी ज़ात से ज़्यादा यकीन है। उसकी सरगोशी पर हन्नान के अंदर मुकम्मल सकून फैल गया। जो बेचैनी उसके अंदर पर फैलाई बैठी थी वो ख़त्म हो गई। मुकम्मल सकून छा गया था जहाँ फजर की धीमी सरगोशियाँ थी। बस फजर ने जरलिश को मिलने के लिए बुलाया था और अभी दोनों आमने सामने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जरलिश उसे देखने से कतरा रही थी। वो अपने इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी और फजर इत्मीनान से उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। उकता कर जरलिश ने फजर की तरफ देखा। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्या चाहती हो तुम हन्नान से? वो उसकी आंखों में देखती पूछने लगी। मेरे सामने हर बात पर फजूल मत हंसा करो। जरलिश कुछ देर उसे देखती रही, फिर जोर से हंसने लगी। मेरे सामने हर बात पर फजूल में मत हंसा करो, जो पूछा है जवाब दो उसका। फजर ने उकता कर कहा। हन्नान को चाहती हूँ मैं तुमसे। उसने ढिठाई से फजर की आंखों में आंखें डालकर कहा। और हन्नान? फजर ने सवाल किया। हन्नान क्या? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे देखती पूछने लगी। हन्नान भी चाहता है तुम्हें? फजर ने अपना सवाल दोहराया। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो अब ये कि तुम नहीं रहोगी तो हन्नान मेरे पास ही आ जाएगा ना। वो भी मुझे चाहने लगेगा। मेरे रास्ते की दीवार तो असल तुम हो। उसने नफरत से फजर को देखते कहा। फजर खामोश रही। रास्ते से तुम्हें कैसे हटाना है? यही कर रही हूँ मैं आजकल। फजर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत को वाज़े देख रही थी। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था। तुम बस इसी काबिल हो कि तुम पर रहम किया जा सके जरलिश। फजर सुकून से उसे देखती हुई बोली थी। जरलिश को आग ही तो लग गई थी। शट अप यू बिच, वो गुर्राई थी। लेकिन फजर के इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। वो दोनों खुली जगह पर बैठी हुई थी, तभी कोई ज़्यादा मुतवज्जो नहीं था उनकी तरफ। तुम काबिले रहम औरत हो जरलिश, बुज़दिल हो। तुम्हारी ये अना तुम्हें एक पल भी सुकून से नहीं रहने देती। जभी तो तुम दूसरों की खुशगवार जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश में लगी रहती हो। दुख हो रहा है तुम्हारी हालत को देखकर। जरलिश ने हाथ में पकड़े ग्लास पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, ऐसे जैसे अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रही हो। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए जरलिश, मेरे शोहर से दूर रहो। तुम एक नफ्सियाती मरीजा हो, बेहतर है अपना इलाज करवाओ जाकर। जरलिश ने गुस्से से ग्लास जमीन पर फेंक दिया। बकवास बंद करो अपनी, वो चिल्लाई थी। सब मुड़ मुड़ कर उन्हीं को देखने लगे थे, जबकि फजर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जरलिश को तमस्कराना अंदाज में देखती वो जाने के लिए मुड़ी। वहां से निकलकर वो गाड़ी के पास आई। गहरी सांस खारिज करके उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसके मोबाइल की बीप बजी। स्क्रीन पर हन्नान का नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस औरत से मिलने की फजर? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा उसे यूं मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। छूटते ही हन्नान उसे डांटने लगा। फजर ने ठंडी सांस भरी। मुझे उससे डर नहीं लगता हन्नान। हन्नान ने लब भींच लिए, फिर पूछने लगा, कहाँ हो अभी? आ रहा हूँ मैं। फजर ने उसे एड्रेस बताया और मोबाइल बंद कर दिया। वो साइड पर खड़ी होकर हन्नान का इंतज़ार करने लगी। जब जरलिश की अचानक आवाज़ पर वो मुड़ी थी। फजर, वो जैसे ही मुड़ी, जरलिश एक बोतल हाथ में लिए खड़ी थी। उसके लबों पर जहर आलूद मुस्कुराहट थी। जानती हो इसमें क्या है? फजर ने नजरें फेर ली। तेजाब, जिसे मैं तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगी तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। वो नफरत से उसे देख रही थी। इससे पहले कि फजर कुछ कहती, जरलिश ने बोतल उसके मुंह पर फेंक दी। फजर की चीख निकली थी और साथ ही जरलिश का कहकहा। फजर अपना चेहरा साफ करती उसे देखने लगी। पानी था। वो हंसने लगी, फिर रुककर फजर को देखने लगी। सोचो, ये तेजाब भी तो हो सकता था ना, जो तुम्हारा चेहरा झुलसा भी सकता था, तुम्हारे चेहरे का हर नक्शा बिगाड़ सकता था। 2 कदम फजर के करीब आकर वो नफरत आमेज लहजे में फुकारते हुए बोली, आज से मेरी और तुम्हारी जंग शुरू हो चुकी है फजर। आज से मैं हर वो हरबा आजमाऊंगी जो तुम्हारी मौत का बाइस बने। शट अप,
फजर ने चबा कर कहा तो जरलिश 2 कदम पीछे हटी और कहकहा लगाने लगी। हन्नान फजर को जरलिश के करीब देखकर गाड़ी से उतरकर उनके पास आया। फजर को बाजुओं के घेरे में लेकर वो परेशानी से पूछने लगा, तुम ठीक तो हो फजर? तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी, देख लो, गौर से देख लो, ठीक है ये। जरलिश के कहने पर हन्नान ने उसे तेज नजरों से घूरा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घुर्राया था। तुम्हारी बीवी ने बुलाया था, इसे ही शौक है मुझसे मिलने का, वो तमस्खराना अंदाज में बोली। शट अप, वो कहकर फजर को लेकर जाने के लिए मुड़ा था। तुम दोनों मियाँ बीवी को शट अप कहने का बहुत शौक है। नान ने लब भींच लिए। वो कुछ कहने के लिए मुड़ना चाहता था, लेकिन फजर ने उसे रोक लिया। हन्नान गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर वो फजर को शिकायती नजरों से देखने लगा। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की फजर? मैं सब क्लियर कर आई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या क्लियर? मैं सब क्लियर करने आई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या क्लियर करने आई थी तुम फजर? वो एक नफ्सियाती मरीजा है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम। वो तासुब से सर हिलाने लगा। फजर ने कनखियों से उसे देखा। अच्छा, गुस्सा तो नहीं हो हन्नान? हन्नान ने उसे देखा। उसकी आंखों में नरमी थी और फजर के लिए तशवीश और मोहब्बत। मैं गुस्सा नहीं हूँ फजर, न कभी तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है बस। प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी मत करना, हन्नान ने नर्म लहजे में उसे कहा। तो फजर ने इस बात में सर हिलाया। हन्नान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फजर ने जरलिश की उस हरकत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया जो उसने कुछ देर पहले की थी, वरना शायद हन्नान का हाथ भी उठ सकता था जरलिश पर। वो खामोशी से बाहर देखने लगी।